किसी को पता नहीं है पूसा That's का नाम amazing. पूसा क्यों है। ये एग्रीकल्चर ही इस रोड की नींव है, ये कोचिंग की नींव है, लेकिन इनके पढ़ाने वाला टीचर मिलने में 70 साल लग गए। ऑलमोस्ट मोर देन 50% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एंगेज इन एग्रीकल्चर। टू अन अकेडमी। आई नो आप सबकी यूपीएससी की तैयारी जोर शोर से चल रही है, आप लोगों ने आईएएस बनने की ठान ली है, लेकिन एक जो कॉमन चैलेंज है, जो कॉमन आपकी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने हम इस पॉडकास्ट के थ्रू आए हैं। यस, द कॉमन प्रॉब्लम, यानी हाउ टू चूज ऑप्शनल। और उसके साथ आए हैं आज हम एक एजुकेटर के साथ। ही इज द टॉप एजुकेटर ऑफ एग्रीकल्चर। 8 साल से भी ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस रह चुका है, टीचिंग एक्सपीरियंस रह चुका है। ही इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड ही इज़ अ यूनिवर्सिटी टॉपर। वी वुड लाइक टू वेलकम कृष्णा बोखरे सर। सर, जो आज का हम जो हमारा ये नई सीरीज़ है इस पॉडकास्ट की, तो हमारे इसमें हम बात करेंगे हाउ टू चूज़ ऑप्शनल। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, जैसे ए फॉर एग्रीकल्चर, तो हम एग्रीकल्चर से ही स्टार्ट कर रहे हैं इस पॉडकास्ट की। थैंक्स फॉर चूजिंग एग्रीकल्चर एज योर फर्स्ट। तो सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। देखिए, इफ़ यू आर जस्ट लाइक कंपेयरिंग एग्रीकल्चर और यू कैन से एनी ऑप्शनल विद द जीएस, जीएस में ऑन एन एवरेज स्कोर ऑफ द एनी स्टूडेंट इज जैसे 400 450 ये एवरेज स्कोर आता है सेलेक्टेड कैंडिडेट का। ओके, देयर कैन बी सम एक्सेप्शंस, बट इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट द ऑप्शनल, सिंगल ऑप्शनल सब्जेक्ट कैन गिव यू अराउंड 280 to 320 or 300, you can say that. Means that if you are comparing GS with optional, optional has a good weightage. Okay, we are not considering here essay and your that interview, but if you are comparing GS and optional, optional has a very great role in your selection. So Almost that's why 25% of yeah, that's why weightage. we have to choose our optional very wisely, where you are having interest. Just like not that like someone is choosing this optional and he is all India rank 1, next year that same optional can fall down. So never choose optional by just like seeing what other peoples are doing. Just select your optional as per your interest. Okay, because you have to be marry with that optional for upcoming until your selection. Okay, and you are having the like interest in optional like agriculture, you can use the same knowledge during your services if you are posted in the rural areas. Okay, there might be some drought like situation, thunderstorm like situation, there can be crop related issues raised by the farmer. Being an agriculture optional IAS officer, you can easily understand their problem and can have solution for that. These are some other benefits of having agriculture optional. Of course. सर, वैसे भी इस सब्जेक्ट की तो वैसे भी मुझे लगता है सबको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पता होना ही चाहिए एग्रीकल्चर के बारे में। Yeah, because India's it's the basic component of our economy. Of course. And almost more than 50% population of India is engaged in agriculture. Their livelihood depend upon agriculture. Okay, so agriculture is country like India cannot avoid agriculture. तो सर, बेसिकली हम इसमें जो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो एग्रीकल्चर हम कवर करते हैं, तो क्या पढ़ते हैं? व्हाट डू वी स्टडी एंड व्हाट डू वी कवर? Actually, in agriculture optional, there are 2 papers. Okay, in first paper we are understanding environment and the forestry. Then in agronomy we are learning in detail about almost all crops, like your wheat, rye, cereals, pulses, oil seeds. Okay, sugar related crop, potato, tomato, everything we are learning. Okay, in the paper 1 in agronomy. Also we are understanding some package of practice related things, how the tillage is done, how fertilizer should be applied, how the chemicals should be applied, like this. And in paper first, other 2 topics are related to soil science. You know that agar soil is not that much healthy, we cannot grow healthy crop. We are understanding everything about the soil. Then after understanding soil, we are understanding about agriculture economics. You know how to grow, but if you don't know how to sell, then what is use? If you want to increase the standard of living of farmer, agriculture scientists, agriculture educators, agriculture extension worker, they are giving lot of efforts. Okay, our production of Indian agriculture is almost very good. We have 3 years of buffer stock in India. You know that during COVID time, everyone was fearful about getting infected, but no one was fearful about मुझे खाने को मिलेगा या नहीं, इसकी किसी को चिंता नहीं थी। कभी आपको लगा कि यार फूड नहीं आएगा, इन्फेक्शन की चिंता थी। इट मीन दैट आवर एग्रीकल्चर इज अ स्ट्रॉन्ग. We have 3 years of buffer stock and we are exporting our food grain to African countries, Middle East and other Southeast Asian countries. We are healthy, sufficient, but main problem in current agriculture center is agriculture marketing. Okay. The things we are growing, farmers are not getting good market.
Okay, so same thing we are understanding in agriculture economics, which is part of our paper 1. After that, we are understanding agriculture extension, okay, where lab to land, the things the scientists are, searching or finding in the laboratory, we are going to take the same thing into the land, okay, where farmer can implement new technologies, advanced technologies. Like recently, government has introduced scheme Drone Didi. They are supposed to give drones to the women's. Okay, they can apply fertilizer with the help of that drone, crop survey, pesticide application, herbicide application. Such things are included in the paper 1, means basic thing. Whatever you are observing anywhere in the villages, the same thing are included in the paper 1. Paper 2 is little bit, you can say, scientific, where we are understanding cell structure, Mendelian genetics, plant breeding method, plant protection related things, horticultural crops, and food security related things are there, food processing related things are there in the paper 2nd. Okay, so it is the common ambiguity among the students. Some students are thinking paper 1 is easy for me, some are telling paper 2 is easy for me, but as a teacher I am seeing both are easy. Yeah. It's overall your understanding and interest. ऑल्सो सर थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाऊंगी, बट यू जस्ट मेंशन कि मार्केट इसकी नहीं होती है, सो उसका कुछ प्लान आप बताएंगे कि हाउ टू मार्केट देन? Actually, most of the time farmers are growing and selling raw material to the public. So instead of just like selling raw material, if you are processing the things, you are packaging, processing, value addition, you can get almost 2 or 3 time rate. Let's say you are thinking that if any farmer is coming to mandi in early morning, here Azadpur mandi is near in Delhi. Okay, they are selling watermelon. You know what is the rate of that watermelon which farmers are selling? They are selling like around 8, 9, 10 rupees per kg. But vendors are selling same watermelon 30, 40, 50 rupees per kg. See the difference. Almost they are selling 4 times what they have purchased. Means if farmers are having contract with the Reliance Fresh or Safal, or they are having some cooperative marketing like system, they can definitely get good rate for their produce. So what I mean that instead of just like producing, farmers should engage in the marketing also. They should know how to market their produce, and that is the need of an hour. So means I am saying there should be the reduction in the middleman system. Like government has one portal is there, e-NAM, e-agriculture national marketing. Such portals should be used by farmer. They should say in which market there is a good rate, what is yesterday's rate, what is the projection of the rate, and as per that projection they should harvest their produce and go in a specific market where they are supposed to get good rates for their produce. सो सर जैसे कि आपने बताया इट इज़ वेरी यूजफुल इन GS ऑल्सो, लेकिन ऐसे में भी, ऐसे राइटिंग में भी इज दिस सब्जेक्ट इज हेल्पफुल? Actually, in GS3, there is a paper, General Studies 3. There is a specific portion is dedicated to agriculture. Like in GS3, there is a crop related questions are there, food related question, PDS system is there, land reforms are there, irrigation related questions are there. This year in the GS3, GS1 and GS3, if you are comparing both paper, around 75 marks question was directly related with the agriculture optional. Okay. It means that you are choosing agriculture as your optional. You are getting every year around 40 to 75 marks in GS3. You will be, means it doesn't mean that कि other को नहीं मिलेंगे, but your answer will be a good answer, having quality answer because of having agriculture optional. Another important thing in prelims, around 4 to 6 questions they are asking which are having direct correlation with the agriculture or agriculture optional. You know, एक एक मार्क्स से लोगों का प्रीलिम चला जाता है ना, बहुत परेशान हो जाते, आपका वंस मोर हो जाता है ना. तो बहुत बार लास्ट टाइम देखो मशरूम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, डेसिडियस फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, उसके पहले सर हर्बिसाइड पेस्टिसाइड पे क्वेश्चन आया था. मीन्स प्रीलिम्स में भी एग्रीकल्चर का एक अच्छा खासा वेटेज है. यस, एंड आपने एसए की बात की, लास्ट आई थिंक 3-4 साल पहले डायरेक्टली एसए का टॉपिक ही था एग्रीकल्चर पे. एंड इन ईच एंड एवरी एसए बाय यू हैव टू मेंशन वेरियस एंगल्स. ओके, वन ऑफ द एंगल कैन बी एग्रीकल्चर रिलेटेड थिंग, टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, food security can be the angle. Okay, so that can be helpful you in most of the time. UPSC प्रिपरेशन वाले बहुत सारे जो स्टूडेंट है रूरल बैकग्राउंड से होते हैं. जनरली उनको पूछा जाता है व्हाट इज द क्रॉपिंग पैटर्न, वहाँ की इकोनॉमी क्या है. हर साल मैंने देखा एग्रीकल्चर ऑप्शन की तो बात ही छोड़ो, उसमें से 70% क्वेश्चन किसी को इंटरव्यू में एग्रीकल्चर रिलेटेड ही पूछते हैं. इस बार बहुत सारे कैंडिडेट के आप ट्रांसक्रिप्ट अगर देखोगे, वहाँ मेंशन अगर है कि एग्रीकल्चर एज ऑप्शनल, उनको लगता है यार कि यार 100 बच्चों में एग्रीकल्चर वाला आ गया, बहुत खुश होते हो. और बहुत सारी चीज़ें उसको उसी के रिलेटेड पूछते हैं. अगर आपका ऑप्शन ऑलरेडी एग्रीकल्चर है तो आप अच्छे से उसको टैकल करते हैं. इस साल ब्रताती दत्ता एग्रीकल्चर ऑप्शन वाली स्टूडेंट है, 202 मार्क मिले हैं.
एक शामल भगत है, उसको 206 मिले हैं। 200 प्लस इन इंटरव्यू, इट इज़ नॉट अ जोक। ऑफ कोर्स। कुछ कैंडिडेट हैं उनको 130, 145, 160 मिले हैं। तो ये बेनिफिट है आपको, क्योंकि आपके एरिया से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। सो इट इज़ हेल्पफुल इन द GS ऑल्सो, इन प्रीलिम्स ऑल्सो एंड इन इंटरव्यू ऑल्सो। सो सर, इफ अ स्टूडेंट डजंट हैव बैकग्राउंड, कुछ एग्रीकल्चर का ऐसा कुछ बैकग्राउंड नहीं है या कुछ भी नहीं पता एग्रीकल्चर का, जैसे आप कहते हो कि लेकिन इंटरेस्ट है, तो ये चूज करना चाहिए सब्जेक्ट अगर बैकग्राउंड नहीं है लेकिन इंटरेस्ट है? देखो, आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि यूपीएससी में हर किसी का हर कोई ऑप्शनल का बैकग्राउंड नहीं हो सकता। अभी रिसेंटली मेरे पास कल एक कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट आया था। वो बोल रहा था सर मैं एग्रीकल्चर ले लूँ या एंथ्रोपोलॉजी ले लूँ या PSIR ले लूँ। वैसे उसका बैकग्राउंड है कॉमर्स का, उसका तीनों भी बैकग्राउंड नहीं है। स्टिल ही इज थिंकिंग अबाउट एग्रीकल्चर। व्हाई? बिकॉज he has an interest, he has some roots in the villages and he is thinking that yes I can do better in the agriculture optional, because यहाँ पे देखिए 70 to 80% क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होते हैं। अगर PYQ भी आप करके जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे एग्रीकल्चर के। तो एनीवन कैन डू, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। कि इंटरेस्ट है तो यू कैन डू इट बेटर इन दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट। दिस ईयर का अगर आप टॉपर की बात की, सुमन यादव, जिसको ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क मिले हैं, इनका बैकग्राउंड लाइफ साइंस का है। अच्छा। एग्रीकल्चर का ए तक पता नहीं था, स्टिल सी हैज सिक्योर्ड हाईएस्ट मार्क इन एग्रीकल्चर ऑप्शनल। इसकी और एक एग्जांपल है आपका अनय नावंदर, केमिकल इंजीनियर है ICT बॉम्बे का, एग्रीकल्चर ऑप्शनल में टॉप किया है। सर, जैसे सुमन यादव की अभी आपने बात की है, तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी ऑप्शनल को लेके? देखो, सुमन वॉज वन ऑफ द ओबीडियंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, वट एवर आई हैव फाउंड। तो सर, जब वो आपसे पढ़ रही थी, हाँ, तो आपको ये पता चल गया था कि हाँ नहीं, ये तो निकालेंगे? कुछ एक टीचर्स को आती है ना इनसाइड। आपने वो instinct। देखा, वो रील बहुत वायरल हो रहा है कि वो आई थिंक उस दिन रक्षाबंधन था, वो बहुत सुबह पेपर लिख के आई थी और उसके पेपर देख के लग रहा है कि शी कैन बी अमंग द टॉप 10, ऐसे मुझे भी लग रहा था। तो मैंने थोड़ी डरी हुई थी कि यार सर मुझे अब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक फ़ोटो खींचा, मैंने बोला देखो बेटा आपका ऑल इंडिया रैंक आने वाला है, ये ऐसे मुझे लग रहा है। तो आई थिंक 4-5 महीने पहले मैंने उसके साथ एक फ़ोटो खींची थी। अच्छा। और उसको एक इंस्पिरेशन था यार कि सर ने मेरे साथ, इसकी मुझ में कुछ है, तो आपको उस टाइम लग गया था? लग गया तो पता चल जाता है, इंस्टिंक्ट हो जाता है। बिकॉज उसको पेपर 2 में 155 मार्क्स मिले फाइनल में, और मैंने जो मार्क्स दिए थे वो 153 थे। 2 मार्क का डिफरेंस आया, और वो ऑन रिकॉर्ड है, ऐसे नहीं कि बाद में चेक किया पेपर। व्हाट्सएप पे मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ कि उसको मैंने मार्क वाली आंसर कॉपी देखो, 2 मार्क का डिफरेंस। लगता है कि यार 150 प्लस अगर किसी को आ रहे पर पेपर, इसका मतलब है कि शी कैन डू बेटर इन दैट। तो एक आइडिया आ जाती है। उसकी स्ट्रैटेजी यही थी कि पूरा सिलेबस उसका थरोली फिनिश था, रिविजन प्रॉपरली हो रहे थे, टेस्ट लिख रही थी, डेली आंसर थी, रिवीजन, और जो भी डाउट क्वेरी है संडे सैटरडे यहाँ ऑफलाइन सेंटर पे आके मुझे मिलती थी, सर ये मेरी डाउट है, ये क्वेरी है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट अगर कंसिस्टेंट है, इंटरेस्ट है एंड प्रोफेशनल प्रिपरेशन करता है, नॉट इमोशनल। इमोशनल का मतलब क्या होता है, कोई IAS IPS दिखा, किसी की रील दिख गई, किसके स्टार दिख गए, मुझे IAS बनना है, दैट इज कॉल्ड एज इमोशनल प्रिपरेशन, क्योंकि वो बन गया मैं बन जाऊँगा। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट की नीड क्या है। अगर आप चाहती कि एग्रीकल्चर में मुझे 300 प्लस आए, तो बेसिक डिमांड है कि आपने सिलेबस की लाइन टू लाइन पढ़नी चाहिए, अंडरस्टैंड करनी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी। विदाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी यू कैन नॉट इमेजिन। कंसेप्चुअल क्लैरिटी है आपकी, फिर खुद के एक शॉर्ट नोट्स बना दो हैंडी। इसका मतलब क्या, ऑल इंडिया देखो, अब जो मेरे स्टूडेंट है, जो मेरे स्टूडेंट नहीं है, कहीं से नोट लेके मेरा ही पढ़ लेते हैं सब लोग। तो अब जो क्लास में है और उनमें कुछ डिफरेंस रहेगा ना, तो आप खुद के एक नोट्स बना दो, उसको वैल्यू ऐड कर दो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, नोट्स बनाना, नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना। सेम नोट्स यू हैव टू यूज व्हाइल राइटिंग योर टेस्ट। टेस्ट में देखो, अगर मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं, इसका मतलब नोट्स ठीक काम कर रही है। अगर मार्क्स नहीं, इसका मतलब नोट्स में कुछ फॉल्ट है। नोट्स को और एक बार रिवाइज करो, वैल्यू एडिशन करो, देन मार्क्स और एक बार नेक्स्ट टेस्ट के टाइम और थोड़ा वैल्यू एडिशन करो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, नोट्स, टेस्ट सीरीज, रिवीजन एंड टीचर के कांटेक्ट में रहना, मेंटोरशिप में रहना। बिकॉज कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये बहुत बड़ी जर्नी होती है 1-1.5 साल की, आपको टेम्पो मेंटेन करना है, देन यू कैन इजीली गेट गुड मार्क्स। तो सर टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है ये या नहीं? देखो, अगर आपको किसी भी ऑप्शन में, मान लो ज्योग्राफी ले लो, जो भी लेना है, अराउंड 4 to 5 मंथ तो एक अच्छे प्रिपरेशन के लिए लग ही जाते हैं। ऐसा नहीं, कोई ऑप्शनल नहीं कि 2 महीने में 3 महीने में हो जाए, आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। टाइम टेकिंग नहीं, एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शनल ठीक है, लेकिन इसको भी 4 से 5 महीने आपको लग ही जाएंगे। वही हमारा बैच का ड्यूरेशन भी वही होता है, एज लाइक अदर ऑप्शनल, नॉट दैट मच टाइम टेकिंग, और वो कम में भी नहीं होगा। एक ऑप्टिमम आपको जस्टिफाई करना ही पड़ेगा इसके लिए टाइम।
तो सर मतलब कहने का मतलब है कि इतना वास्ट सिलेबस नहीं है, जितना सबका है उतना ही है। हाँ, एक एवरेज सिलेबस है, वास्ट तो नहीं है और कम भी नहीं है, एक एवरेज सिलेबस है। एंड जो भी कैंडिडेट है जिनको मान लो कि मन की बात पे विश्वास नहीं है, व्हाट आई मीन टू से कि यार ये मेरा ओपिनियन पॉलिटिकल पे ये है, हिस्ट्री पे ये है, वो है, अगर आपको लगता है स्ट्रेट फायर माइंडेड के आप लोग हो कि मुझे मेंडल के 3 लॉ लिखने हैं, 15 मार्क मिलने हैं, आ जाएंगे मार्क्स। मान लो प्लांट बिल्डिंग की प्योर लाइन मेथड लिख गए, 10 मार्क आ जाएंगे। पेडिग्री मेथड लिख 10, यानी कि जो सिलेबस में लिखा है वही पूछा जाएगा। भाई इनडायरेक्टली आई वांट टू से अगर आप रट्टा भी मार सकते हो कुछ कुछ चीज़ों का, डायरेक्टली मार्क आएंगे। यहाँ पे आपके ओपिनियन की बात नहीं। बहुत बार क्या होता है, जैसे मान लो कोई सोशल बैकग्राउंड के सब्जेक्ट है, वो पूछते हैं कि इस पर आपकी क्या राय है। राय देने की जरूरत नहीं, एग्रीकल्चर ऑप्शन में जो है वही करना है। तो ज़्यादातर सर किसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं? आप तो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं आप। देखो सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन अराउंड 90% हो गए। अच्छा। 5-10% थोड़े करंट, जैसे कि मान लो लास्ट ईयर थोड़ा इन्होंने क्वेश्चन पूछा था फार्मर लॉ पे, क्योंकि एजिटेशन चल रहे थे, एमएसपी की बात हो रही थी, उस पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो करंट बेस बहुत कम होते, रेयरली पूछे जाते हैं। डायरेक्टली सिलेबस के लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते, थोड़े से अप्लाइड भी हो सकते हैं, लेकिन सिलेबस को कभी वो छोड़ते नहीं है। ओके। स्कोरिंग पोटेंशियल कितना है इस सब्जेक्ट? देखो स्कोरिंग पोटेंशियल तो 300 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। अब तक 317 है, 306 है, 307, 302 है ना, दिस ईयर 285। सो 280 से 320 के बीच में आपको मार्क्स आ सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो 180 भी आएंगे। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मान लो कि ले लिया और मार्क्स आ गए। ईच एंड एवरी ऑप्शनल रिक्वायर्ड सर्टन अमाउंट ऑफ एफर्ट, और एफर्ट आप देते तो आपको मार्क्स आएंगे, कोई मेजर इशू नहीं। लेकिन एक ठीक ठाक, कभी ये ऑप्शन ऐसे गिरता नहीं है कि बहुत बार डाउनफॉल हो गया। मैंने ये देखा इस बार जो भी सेलेक्ट हुए सबको 260 से आ गई है, 260 और मोर देन दैट, मीन्स एवरेज एंड अबव एवरेज ही इसमें स्कोर आता है आपका। ऐसा पोर स्कोर कभी नहीं आएगा इफ़ यू आर गिविंग सर्टन अमाउंट ऑफ एफर्ट इन दिस ऑप्शनल। सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लास्ट ईयर भी शायद ज़्यादातर बच्चे आप से लास्ट पढ़े। ईयर में 8-9 बच्चे मेरे हुए थे। इस बार भी टॉपर के साथ सभी हमारे ही हैं ऑलमोस्ट, है ना। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो नहीं डायरेक्टली रिलेटेड थे मुझसे, वो मेरे टेलीग्राम चैनल का मेंबर है। अच्छा अच्छा, वाओ। इसका मतलब अब देखो, कहीं उन्होंने और कोचिंग ज्वाइन या कहीं किया होगा, लेकिन मैंने सर्च करके देखा तो टेलीग्राम में है ही। दे आर इनडायरेक्टली बेनिफिटेड बाय मी। तो सर जीएस पेपर के टॉपिक्स आप बताएंगे? जैसे आपने बताया कि जीएस पेपर में बहुत, तो मेन टॉपिक्स जीएस पेपर में कौन से ओवरलैप करते हैं? यहाँ पे देखिए, एक तो क्रॉपिंग वाला, क्रॉपिंग पैटर्न वाला क्रॉप करता है, इरिगेशन वाला यहाँ पे मैच करेगा, लैंड रिफॉर्म वाला मैच करेगा, फूड प्रोसेसिंग वाला है, पीडीएस वाला टॉपिक मैच करता है। बाकी देखिए और तो एक दो सॉइल रिलेटेड टॉपिक है, वो मैच करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और प्रीलिम्स में देखिए डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन जियोग्राफी के थ्रू एग्रीकल्चर पूछा जा रहा है उसमें, दैट्स इट। तो सर जैसे अगर हमने ये मन बना लिया कि हमें ये एग्रीकल्चर एज एन ऑप्शनल लेना है और बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो स्क्रैच से कैसे हम शुरुआत कैसे करें इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने की? देखिए, व्हेन यू आर एंटरिंग इन माय क्लास, आई एम थिंकिंग दैट यू डजंट नो ए फॉर एग्रीकल्चर। ओके। आई एम टीचिंग फ्रॉम द बेसिक। जैसे कि इफ यू आर इन माय क्लास, आई नो दैट शी इज नॉट नोइंग एनीथिंग। सो ऐसा स्क्रैच कोई बेसिक बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्हेन आई एम स्टार्टिंग द क्लास, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस, लाइक पेपर सेकंड स्टार्ट कर दिया, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल इटसेल्फ। अगर पेपर 1 स्टार्ट किया तो व्हाट इज द रूट, व्हाट इज द शूट, व्हाट इज द लीफ, व्हाट इज द सॉइल, बेसिक से पढ़ाया जाता है। ओके, सो एनीवन हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट एग्रीकल्चर बट हैविंग जस्ट इंटरेस्ट, आई कैन ट्रेन हिम और हर फॉर 300+। ओके सर, तो ये भी बताइए कि जैसे अगर हम इस सब्जेक्ट की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं और मतलब कन्फ्यूजन है अभी भी, यू नो वी वांट टू चूज दिस एज एन ऑप्शनल, लेकिन फिर भी हमें सिलेबस में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो अगर कोई ऐसी बुक आप रिकमेंड करेंगे जिसको थोड़ा सा कुछ पढ़ने से हमें ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस ये हम पढ़ सकते हैं एंड वी कैन चूज इट एज एन ऑप्शनल? देखो एज सच ऐसी कोई बेसिक बुक नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक्स है, चैप्टर्स है, ओके, उसको आप बेसिक थोड़ा सा पढ़ सकते हो। जैसे एनसीईआरटी में एग्रीकल्चर नाम का ही चैप्टर, अच्छा पूरा वही, इस चैप्टर मिलेगा आपको 12th स्टैंडर्ड की, या तो इन योर ज्योग्राफी बुक्स भी एग्रीकल्चर रिलेटेड चैप्टर होते हैं। कहने का मतलब ये कि रॉकेट साइंस नहीं है, दीज आर द कॉमन थिंग्स एंड एवरीथिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस ऑप्शनल आई हैव कंपाइल्ड इन माय 15 बुक सेट। एवरी स्टूडेंट जो एडमिशन लेता है उनको मैं कंपलसरी ये फ्री ऑफ कॉस्ट बुक दे देता हूँ, उनको एक सेट ही मिल जाता है 15 बुक का, जहाँ पे मैंने सब कुछ इकट्ठा करके रखा है। यू डोंट हैव टू गो हेयर एंड देयर, क्योंकि क्या होता है बच्चों का माइंडसेट होता है ये सर का नोट्स यूज़ करो, वो सर का नोट्स यूज़ करो, और एट द एंड वो डेटा कलेक्टर बनते हैं, उनको बनना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इधर उधर मत भागो,
trust on a single source, revise it, correct it and write it. That's it. सर जैसे हम ये एग्रीकल्चर ऑप्शनल, आप तो इतने साल से बच्चों को गाइडेंस दे रहे हैं, सो व्हाट इज़ द वन कॉमन मिस्टेक जो इस सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं बच्चे, वो मिस्टेक करते हैं और वो आप सजेस्ट करें कि वो ना करें वाइल प्रिपेयरिंग? सबसे इम्पोर्टेंट वही, मैंने जो लास्ट क्वेश्चन आपने पूछा था, ये बहुत बार क्या करते हैं, कोई टॉपर बोलता है मैंने ये बुक यूज़ की थी, वो बुक, सच में बताओ तो ये 25-30 बुक की लिस्ट है, रेफरेंस इतनी बड़ी लिस्ट हो जाएगी। प्रैक्टिकली किसी भी कैंडिडेट को पॉसिबल नहीं हो 25 बुक पढ़े और उसमें से आराम से जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रिक्वायर्ड चीज़ निकाले। मैंने 8-10 साल से ये बुक 4-4, 5-5 बार पढ़ी है। अगर मैंने सेम एफर्ट लिया है और सेम चीज़ें मैंने नोट्स में कॉपी करके रखी है, उसको प्रोसेस किया है, तो मुझे लगता है आप वो मिस्टेक ना करें कि आप वो पूरी चीज़ें दोबारा पढ़ें फिर उसके नोट्स बनाएं, क्योंकि कंपटीशन इज़ वेरी हाई। क्योंकि आप लोग वो बुक पढ़ने में अपना टाइम गवाओगे इतना सारा, और बाकी लोग मेरे नोट्स पढ़ के आराम से वो लेवल पे पहुंच जाएंगे, आप वहीं फंसते रह जाओगे, बिकॉज साइकिल इज़ वेरी लो। प्रीवियसली आई थिंक 4-5 साल पहले प्रीलिम्स और मेंस में अराउंड 110 डेज़ का बच्चों को टाइम मिलता था, इस बार 84 डेज़ का मिल रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपके 30 दिन कम हो गए। अगर आपको, और दूसरी चीज़ होती है आजकल प्रीलिम का पेपर बहुत अनप्रिडिक्टेबल निकल रहा है, किसी को जब तक लिस्ट में नंबर दिख तब तक पता नहीं होता मेरा प्रीलिम क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। मान लो 12-15 दिन उसमें चले जाएंगे 84 डे में, बट आपके हाथ में मैक्सिमम रहेंगे 65 डेज। क्या 65 डेज में आप बताओ कि वो वाला पूरे 25-30 रेफरेंस बुक आप पढ़ोगी? पॉसिबल है नहीं। सो इफ़ यू आर ट्रस्टिंग अ टीचर, ट्रस्ट 100%। ओके, वो मिस्टेक ना करें जो बाकी लोग बहुत बार बुक लेके आते हैं, मार्केट से पढ़ते हैं और 2-3 महीने के बाद फ़ोन करते सर अब मैं क्या करूँ। दैट इज। तो सर कितना डायनेमिक है सब्जेक्ट, और करंट अफेयर्स में भी कितना देखो डायरेक्टली एज सच करंट अफेयर कहीं पे मेंशन नहीं है, बट यू कैन राइट करंट अफेयर रिलेटेड स्कीम लाइक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, कृषि सिंचाई योजना है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, अन्नदाता आय संरक्षण स्कीम है, इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम्स है। यू कैन राइट देम इन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। ओके, बट 90-95% थिंग्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द सिलेबस। ओके, तो ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ों से ही काम चल जाता है, ऐसा नया कुछ नहीं इसमें पूछेंगे, सिलेबस रिलेटेड ही चीज़ें आ जाती हैं। सर एक पर्सनल सवाल भी पूछूंगी, आपका कैसे एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट आया? अपनी भी कोई छोटी सी स्टोरी आप शेयर कीजिए। Actually, I done my graduation in agriculture. I was gold medalist in that. After being a gold medalist, I did my master. वही ये तो सर हमें आपकी सारी चीज़ें पता है, लेकिन आपका इंटरेस्ट कैसे आया शुरुआती में? देखो क्या हुआ था कि 12 साइंस के बाद हर किसी को लगता है कि यार डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मेरा ये सपना था डॉक्टर बन जाओ। अच्छा। हाँ, मैंने कि बायोलॉजिकल साइंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, तो आई थिंक तब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने MBBS की सीट, एक CET हुआ करती थी, तो उसमें मुझे देखो उस साल का मेरिट था 156 मार्क आउट ऑफ 200 मार्क्स। जिसको 156 मिलेंगे वो MBBS बन जाएगा, मुझे आ गए थे 133। यानी कि एक मान लो कि 20 मार्क कम मिले थे, तो ऐसे लग रहा था कभी कभी मैं रिपीट अगर कर दूं तो 20 मार्क का डिफरेंस निकल जाएगा, MBBS बनूंगा। लेकिन आई वॉज नॉट दैट मच फाइनेंशियली स्ट्रांग कि वो फिर 1 साल और रिपीट करना है। पापा ने बोला देखो यार मैं खेती करता हूँ, आप खेती पढ़ो, कुछ नहीं भी हुआ तो अच्छे से खेती करोगे, हमारी इनकम बढ़ जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो वहाँ पे तब मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिली एग्रीकल्चर के। डॉक्टर नहीं बनना, तो फिर बाद में ऐसे फील हो रहा है कि यार चलो हम ह्यूमन का डॉक्टर नहीं बने, अब प्लांट का तो डॉक्टर बने, इनकी तो बात कोई सुनता नहीं है, हम इनको सुनेंगे भाई तुझे कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, कौन सा डिसीज़ हो गया, कौन सा। तो बस एक प्लांट के रिलेटेड थोड़ा एक लगाव होने लगा कि प्लांट्स आर जस्ट लाइक माई फ्रेंड्स। ठीक है, फिर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया कि आई वॉज यूनिवर्सिटी टॉपर। जी सर। फिर गोल्ड मेडल मिल गया, फिर और गोल्ड मेडल भी लेके आ गए, टॉप भी कर ली यूनिवर्सिटी। फिर मास्टर जो MSc किया मैंने एग्रीकल्चर में, वहाँ पे भी मैंने टॉप किया। फिर मैंने इसमें नीट एग्ज़ाम जो होती है प्रोफेसर बनने के लिए क्वालिफाई करना है, तो मैंने वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई कर ली। एंड वही फिर उसके बाद में साइंटिस्ट बनने का सोचा, फिर मैं पूसा आ गया था यहाँ साइंटिस्ट बनने के लिए। तो उस टाइम क्या हो गया, ये उन्होंने बोल दिया कि आप PhD के बाद ही साइंटिस्ट बन सकते, MSc पे नहीं बन सकते। मेरे पास तो PhD थे नहीं, रूल चेंज हो गया, पहले MSc के बाद एंट्रेंस एग्जाम दे दो उनका और साइंटिस्ट बन जाओ। तो फिर मैं कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ दिल्ली में कुछ मेरे बैचमेट सीनियर थे, एंड तब एग्रीकल्चर का सिंगल टीचर भी नहीं था जो वेल नोन है। अच्छा। अभी भी बहुत टीचर नहीं है उतने तो उन्होंने बोला कि दिस इज द पर्सन कि ये अपने पेपर चेक कर सकता है एटलीस्ट। तो उन्होंने बोला कि यार चलो सर हमारे पेपर तो चेक करो, आप साइंटिस्ट बनने के लिए आए लेकिन हमारा काम हो जाएगा। एंड यू विल नॉट बिलीव दैट पहले ही साल में 2-3 बच्चों को 300 प्लस आ गए, वो सेलेक्ट भी हो गए।
जब इनको कोई पूछता था यार एग्रीकल्चर कैसे करना है, वो मेरा नाम बताते थे, यहाँ ये कृष्णा सर है, वो पेपर चेक करते, कोचिंग नहीं लेते, ऐसे प्राइवेट बिजनेस चल रहा था, यू कैन से दैट। उसके बाद में पॉपुलर बहुत ज़्यादा हो गया, टेलीग्राम चैनल पे 5-6 हज़ार बच्चे हो गए। लॉकडाउन में अनअकैडमी का कॉल आ गया कि सर आपको पढ़ाना है। नहीं सही सर, इस बहाने आपने इतने सारे ऑफिसर्स तो निकाले हैं, आपकी गाइडेंस से बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिली है। सो और दूसरी आपको, आप ये सीक्रेट सब लोग जानते नहीं होंगे, ये पूसा रोड का पूसा नाम क्यों पड़ा है पता है आपको? नहीं सर बताइए। किसी को पता नहीं है। देयर वाज अ पर्सन, यूएसए का एक पर्सन था, उसका नाम था फिलिप्स। अच्छा। ये फिलिप्स जो आपने आई थिंक लॉर्ड कर्जन था 1905 में, जो इंडिया का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, ब्रिटिशर लॉर्ड कर्जन, जो बंगाल का इंडिया का जो उसने ब्रेकअप किया है ना, बुरे नाम से जाना जाता है, लेकिन ये फिलिप्स उसका दोस्त था। और फिलिप्स की थी केमिकल की कंपनी यूएसए में, और उसको केमिकल इंडिया में बेचने थे, फॉस्फेट रिलेटेड, ऐसे जो ना एग्रीकल्चर रिलेटेड। तो क्या हुआ, फिलिप्स ने लॉर्ड कर्जन को बोला मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ, आप है ना एक यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज बनाइए, हम इनको लोगों को एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे और उनसे कहवाएंगे कि यार केमिकल यूज़ करना चाहिए। और अच्छी भी बात थी ना, मान लो कहीं अगर कीड़े आपके क्रॉप को ख़त्म कर देते हैं तो इन्होंने क्या किया, समस्तीपुर बिहार में एक पूसा, एक वहाँ पे एक एग्रीकल्चर कॉलेज बनाया, और ये फिलिप्स ने बहुत पैसे दिए थे, तो उसके रिस्पेक्ट में उन्होंने क्या कर दिया, वो एरिया का नाम रखा पूसा, पी फॉर फिलिप्स, यू फॉर यूएसए। अच्छा। PUSA, पूसा जानते हो आप? हाँ। ठीक है। फिर 1939 में वहाँ पे आ गया अर्थक्वेक, ओके। और वो पूरा इंस्टीट्यूट बर्बाद हो गया। फिर ब्रिटिशर ने क्या किया, ये पूरा ओल्ड राजेंद्र नगर, ये एरिया पूरा जंगल हुआ करता था तब। फिर 1939 उन्होंने यहाँ पे जंगल साफ करके वो वाला इंस्टीट्यूट यहाँ शिफ्ट कर दिया, और फिर उसके मेमोरी में ये पूरे रोड का नाम पूसा कर दिया। ओह ठीक है। वाह। P फॉर फिलिप्स एंड U फॉर यूएसए, पूरा ये नाम पूसा कैंपस नाम से जाना जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि 70 साल के बाद भी यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑप्शनल पढ़ाने वाला उनका टीचर ही नहीं था। और सर ये जैसे ये स्टोरी भी मुझे नहीं लगता कि पता होगी लोगों किसी को पता नहीं है पूसा का नाम पूसा क्यों है। दैट्स अमेजिंग। देयर वाज फिलिप्स, तो उसके नाम से पूरा रोड उसी के नाम से है। तो मतलब एग्रीकल्चर से ही नींव, एग्रीकल्चर इसकी नींव है। ये एग्रीकल्चर ही इस रोड की नींव है, ये कोचिंग की नींव है, लेकिन इनके पढ़ाने वाला टीचर मिलने में 70 साल लग गए। नहीं पर अब हमारे पास सर हैं, अब हमारे पास सर हैं, अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास एग्रीकल्चर के टीचर नहीं है। बिल्कुल। आई होप दैट यू विल repeat this story so many times. Why this pusa? That's amazing sir. Okay. तो सर फिर भी अगर जैसे मैं कहूँ कि ऑप्शनल अगर जिसको चूज करना और बिल्कुल ब्लैंक है, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे? और नॉट जस्ट एग्रीकल्चर, अगर कोई और भी सब्जेक्ट चूज करे तो उसको कौन से 3 या 4 स्टेप एनालाइज करने चाहिए अपने बारे में? देख से सबसे पहले आई थिंक 42 ऑप्शनल की लिस्ट है यूपीएससी की वेबसाइट पे। 42 में से आप एटलीस्ट 10 ऑप्शनल को सॉर्ट आउट कीजिए कौन से आपको लेने हैं। आउट ऑफ द 10 ऑप्शनल, जस्ट वो 10 ऑप्शनल के आप क्वेश्चन पेपर देखिए। पहले तो सिलेबस देखिए, जहाँ पे आपको मन लगे हाँ यार ये सिलेबस मुझसे किया जा सकता है, दिस वन, तो फिर आपकी लिस्ट आ जाएंगी 5 ऑप्शनल पे। फिर 5 के फिर एक बार क्वेश्चन पेपर देखिए, फिर 2-3 पे आ जाओगे आप। फिर उसमें से लगता है कि हाँ यहाँ पे इंटरेस्ट भी है, क्वेश्चन भी रिपीटेड हो रहे हैं, और आई कैन सॉल्व दिस, तो आउट ऑफ दैट 2-3 ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। और सर अनअकैडमी में जो हमारा एग्रीकल्चर का ऑप्शनल का जो प्रोग्राम आ रहा है, उसमें बच्चों को क्या मिलेगा वो प्लीज़ आप बताइए। दूसरा देखिए, अनअकैडमी पे एग्रीकल्चर ऑप्शनल का जो फुल फ्लेज कोर्स आ रहा है 20 जून से, इसका एक पहला भी एक इंट्रोडक्टरी सेशन होगा 3 जून को। स्टूडेंट कैन कम एंड join my class from 3rd June onwards, but the full-fledged batch will start from 20 June. In that course, सबसे पहले there will be the complete classroom for 5 months. Both paper will be covered in detail from basic to advanced. You will get study material. Then there will be daily answer writing. You can give me 1 or 2 question for evaluation. I can evaluate them. और इसमें यूनिट वाइज टेस्ट भी आपको मिलेगी, यानी कि टेस्ट सीरीज बाहर कहीं लगाने की जरूरत नहीं है। बुक्स भी आपको साथ में मिलेंगे, एंड ये 3 फॉर्मेट में होगा। यू कैन कम एंड सिट इन द क्लास, ऑफलाइन देखो, मान लो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, रूम बैठे देखो, ऑनलाइन एक्सेस है। और दूसरी चीज़ है, मान लो ऑफलाइन भी नहीं किया, ऑनलाइन की इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है स्टूडेंट की, कि ये बहुत फ्लेक्सिबल कोर्स है। ठीक है। एंड आई यूजुअली स्टे इन दिल्ली, सो स्टूडेंट कैन मीट मी बिफोर क्लास, आफ्टर क्लास, संडे सैटरडे भी ऑलमोस्ट मैं यहीं पे रहता हूँ। ठीक है। सो मोस्ट एक्सेसिबल ऑप्शनल, मोस्ट एक्सेसिबल टीचर, सो यू कैन ईजिली गेट गुड मार्क्स फ्रॉम दिस ऑप्शनल। अमेजिंग सर।
सर मुझे तो बड़ा मज़ा आया, स्पेशली पूसा वाली स्टोरी, और ये बहुत ही यूनिक स्टोरी और बहुत लेसर नोन स्टोरी है जो पता नहीं होगी, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शेयर दिस विद लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स एंड लॉट ऑफ पीपल. Thank you so much for everything, sir, and especially for this story. Okay, thank you so Thank much. you. Thank you.